दिस इज द टेक अवे आई हैव टेकन कि इवेंट होने के बाद भी इवेंट की लाइफ होती है जो सोशल मीडिया पे जाती है, मोर सो नाउ। मतलब आपका ऑर्गेनिक कंटेंट जो आप सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो आप मेटा और गूगल एड्स रन करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स कभी रिप्लेस होंगे। ऑफ कोर्स एआई जनरेटेड क्रिएटर्स आते हैं, बट इफ यू आर बेस्ट एट व्हाट यू डू एंड यू टेक असिस्टेंस ऑफ ChatGPT for an example, it can help you generate better ideas, give you better data. You can use it as your personal assistant to grow your platform. Really? Yes. And I feel giving prompts is the hardest task. I'll give you a tip. ChatGPT को बोलो, Hello everyone, welcome back to Conversation with Khushbu. As always, I am super excited to have a conversation with today's guest, and she is my school friend Bharti Narang. From making school projects with her to now having a conversation and watching her grow her brands, her anchoring life, it's truly inspiring. I have seen her working with a lot of celebrities, building her own brand. So stay tuned to watch whole conversation and get the insights about social media, AI and whatnot. Also, special thanks to TEH Studios for this amazing setup. Hi Bharti, how are you doing? I'm good, Khushbu. Thank you. How are you? I am doing great. Thank you for accepting my invite and being my guest. Because I remember our childhood, we were making projects together, and now we are sitting on the couch sharing our conversation. It's like I want people to know about you, your experience being an anchor, being a branding person. You are a multi-talented person. So if you can just share your experience to the audience, that would be great. Yeah. So I think everything that we do has our roots in the childhood. So my parents always pushed me on stage. मतलब co-curriculars में तो मैं बहुत active थी alongside studies. So being on stage just came naturally because I was always pushed onto the stage. Followed by that, since I was a nerd, I did my engineering, I did my job, but still बहुत disconnect था in what I was doing in the IT sector. So I just wanted to do something which is creative. So I started creating videos online and putting those up on YouTube, and that's how my journey with the new age stage began. कि कैमरा हो गया, content बन रहा है, I'm just talking to the camera, writing my scripts and ideating all of that. So that was one aspect of it. And जब मैं office, like when I was working in my corporate job, you know, town halls होते हैं offices में, छोटे मोटे functions होते हैं, I used to host that. मतलब मेरे लिए तो ऐसे था कि ये it's just like a thing, ये तो मैं स्कूल के functions host किए हैं, कॉलेज के किए हैं, तो ये भी कर ही सकती हूँ. घर पे छोटी मोटी किसी की wedding anniversary हो गई, birthdays हो गया, I was their go-to person. कि गेम्स करा ले भारती, ये कर ले, वो कर ले, and I used to be an organizer. Okay. Yeah, like for my family functions. तो one day, one of my very closest friends, she said कि भारती आप anchoring करो. And I was like, anchoring ये क्या होता है? मतलब I was so innocent कि मुझे वो profession का नाम भी नहीं पता था. तो उसने जब मुझे बोला कि आप anchoring करो, I gave it a serious thought. And I was like, okay, stage पे तो मुझे fear नहीं है. I don't have stage fear. I can go and rock it. Then I started connecting with choreographers. I started connecting with event planners. मैं सबको call करती थी कि you know मुझे anchoring शुरू करनी है. कुछ project है क्या जिसमें मैं कर सकती हूँ. Okay. And a very kind choreographer. Again, she is a good friend. She मतलब that उसने मेरा कोई show नहीं देखा था, but she had utmost trust in me. क्योंकि मैंने छोटे मोटे एज आई मेंशन शोज किए थे, एनिवर्सरीज ये वो, तो शी गेव मी माय फर्स्ट ब्रेक. सो दैट्स हाउ माय फर्स्ट शो हैपेंड. और जब मैंने मेरा फर्स्ट शो किया था, आई वाज स्टिल वर्किंग. मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था या सिक लीव डाली थी, आई डोंट रिमेम्बर. एंड दैट वाज माय फर्स्ट पेड गिग. फ्रॉम दैट वन शो हैपेंड, सेकंड हैपेंड, थर्ड हैपेंड, एंड आई ऑलवेज मेड श्योर कि हर एक इवेंट आप करो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, no matter the scale, you give your best. क्योंकि जब आप अपना बेस्ट देते हो और वो लाइव ऑडियंस है, राइट, तो if there's a live audience, you are doing your best, they see your work, और कोई तो एक ऐसा होगा जो आपको रेफर करेगा. So that's how my anchoring journey began 5 years ago. Close like January 2020 was when I left my job.
थिंकिंग कि अब मैं फुल टाइम एंकरिंग करूंगी, यूट्यूब करूंगी. मार्च 2020 कोविड हिट, तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक मैंने बहुत ऑनलाइन शोज किए. आई डिड अ लॉट ऑफ शोज, क्योंकि तब इवेंट्स ऑनलाइन हो रहे थे. होते थे ऑनलाइन. यस, बहुत सारे कॉर्पोरेट HRs, कॉर्पोरेट फ्राइडेज कैसे थोड़ा चिल सेशन होता है, कुछ एक्टिविटी होती है, वो मैंने होस्ट किया. गॉट एसोसिएटेड विद अ फ्यू कॉर्पोरेट पीपल. मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए कि मुझे काम चाहिए. आई एम एन MC, आई एम एन इंजीनियर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेनिंग फेथ. कट टू मार्च टू अक्टूबर वाज अ ड्राई सीजन. बहुत ऑफ सीजन था, मतलब कोविड था ना, कुछ नहीं कर सकते थे. अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स व्हेन द मार्केट्स ओपन, शादियां होनी शुरू हुई, विद गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिला. एंड दैट्स हाउ आई बिगन लाइक माय जर्नी फुल फ्लेजेड. Okay. Yes. You said कि your first gig was really amazing and all. How did you felt when you got your first gig and how was the experience? मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने स्टेज तो किया है, थिएटर, ड्रामा, डायलॉग्स किए हैं, पर यहाँ पे भी किसी की शादी हो रही है, राइट? दैट वाज अ हल्दी सेरेमनी. I was prepared, I was scared, I had my scripts. The only thing that got me through was being prepared. तो I always say कि आप अपने शो से पहले ना प्रिपेयर्ड रहो. कितनी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, लड़का लड़की का नाम क्या है, फैमिली में कौन से मेंबर्स हैं, मदर फादर का नेचर कैसा है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि नहीं है. You should know family dynamics, you should know the language your audience speaks, and you should build a rapport with the bride and groom or with any family member for you to know family dynamics. तो मैंने मेरा होमवर्क बहुत तगड़ा किया था. And then when I had the flow, event flow मेरा था, and then it went on good. यार इतना टेक्निकल होता है, लाइक इतना बैकग्राउंड जानना है ऑल. आई थॉट कि ठीक है बेसिक इन्फॉर्मेशन में बात करना, बट द वे यू आर सेइंग कि होमवर्क करना पड़ता है, रियली. So see, a lot of this is how I do my shows. Abhi there are people who might do or might not do, but if I have to give you a structure कि कोई शो होस्ट करने से पहले मैं कैसे कैसे चीजें करती हूँ. जैसे if a client is reaching out to me, be it a corporate client or a wedding client, I have a set of questions. मैं उनको एक Google form भेजती हूँ, वो questions fill करते हैं. Then I do 2 meetings with them to understand what they do, who they are. You get the job. I got it. I think ये insight से ना बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि एंकरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, right? हाँ. The way you are telling everything ना, I think चलेगा, क्योंकि ये स्टेप्स ज्यादा रिवील हो जाएंगे तो. हाँ, I mean it's आप कोई भी काम करते हो, just be prepared about it. Do your homework. फिर आप स्टेज पे हो तो इट्स ऑल, देन वो स्टेज के बाद की जर्नी अलग होती है. बट स्टेज पे जाने से पहले वो नर्वसनेस फील होती है. सो डू यू हैव एनी मंत्रा टू काम यू डाउन? Calm you down. नर्वसनेस तो बहुत होती है. टिल डेट आई ऑलवेज वांट टू गो टू द लू बिफोर माय शो, बट वंस यूर सी, ये जो चीजें होती है, नर्वसनेस कैसे कम होती है? कॉन्फिडेंस से. कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्रैक्टिस से. द मोर शोज यू डू, अगर आपने ज्यादा शोज किए भी नहीं हो, मैं तो शो से पहले मिरर में जाके समझती हूँ मैं ही मेरी ऑडियंस हूँ, एंड आई रिपीट माई लाइन्स एंड आई बेसिकली मैं पूरा मॉक शो अपने आप को देती हूँ. तो आई एम वेल वर्स्ड एंड वेल प्रैक्टिस्ड, एंड देन वंस आई एम ऑन द स्टेज, no matter what I know, I'm gonna kill it. Okay. So yeah. Nice. So any difficulties you have faced in the crowd कि you know कोई crowd ऐसा होता है कि manageable होता है, कोई नहीं होता है. How have you overcome that? Okay. So I have watched videos of a lot of my senior anchors. तो मैं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ उनके experiences से through their videos. बहुत बार ऐसे होता है वेडिंग फंक्शंस में कि लोग इंटरैक्टिव ही नहीं होते. मतलब लोग आपको, आप स्टेज पर हूट कर रहे हो, एनर्जी में हो, लोग आपको जवाब ही नहीं दे रहे होते. होता है. तो डोंट बैश योरसेल्फ, डू सोलो एंकरिंग. आपने जो प्रिपेयर किया अपना वो काम करो, स्टेज से हटो, जस्ट गो विद द फ्लो. ओके. बट कोई तो एक इंसान होता ही है क्राउड में जो आपको देख रहा होता है, जो आपके साथ एंगेज कर रहा होता है. वो करो. सो एक क्राउड बहुत कोल्ड होता है, आइस ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है.
Okay. कुछ क्राउड्स आपको मिलेंगे जो बहुत एनर्जेटिक होंगे, उस शो में धमाल कर दो. Okay. Yes. So any wedding or corporate event जो आपका बहुत दमदार रहा हो, you have that experience which you want to share? वैसे तो सब शोज बहुत ही अच्छे होते हैं, Hmm. बट रिसेंटली आई एम एसोसिएटेड विद एन एजेंसी जो कॉर्पोरेट शोज करती है. तो वो लोग पोस्ट द इवेंट काफी सारे वीडियोस ऑनलाइन डालते हैं. Mm-hmm. अब शो जब आप ऑन स्टेज हो, इक्का दुक्का प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए, होनी नहीं चाहिए कॉर्पोरेट शोज में, बिकॉज दे आर सीईओ, सीएक्सओ, सीएफओस. यू कैन नॉट जस्ट टेक देयर नेम्स Yeah, रॉन्ग yeah, एंड yeah, देयर yeah, yeah. डेजिग्नेशंस एंड देयर इंट्रोडक्शन. True, आप true, नहीं true. गलत कर सकते हो. दैट इज योर बेसिक एक्सपेक्टेशन एज एन एमसी. Yeah. बट अगर ऐसा होता है तो ऑन स्टेज तो चल जाता है यार, सॉरी बोल के आप कुछ करके आप उसको मैनेज कर सकते हो. बट पोस्ट जैसे वो इवेंट खत्म हो गया, उसकी वीडियोस आ गई, उसकी रील्स जा रही हैं, बट वो रील में जब आपका क्लाइंट कोई XYZ कंपनी को टैग करेगा, उस सीईओ को टैग करेगा, उसको तो पता चलेगा ना कि तुमने गलत नाम लिया है. तो दिस इज द टेक अवे आई हैव टेकन कि इवेंट होने के बाद भी इवेंट की लाइफ होती है जो सोशल मीडिया पे जाती है, मोर सो नाउ. सो एज एन एमसी अगेन माय मंत्रा ओनली इज प्रैक्टिस. Okay. प्रैक्टिस करो. अब तो मैं जैसे ऐसे शोज जो करती हूँ, सब CXO CEOs के नाम 10 बार रिपीट करती हूँ ताकि मेरा प्रोनाउंसिएशन और मेरी जबान साफ हो. Oh. So like I have heard people do courses acting and being an MC. तो बिना वो course किए हुए you are able to manage to practice that? Yeah, I'm able to do that because then I sit with my event planners, the agency people. Every show I do, Khushbu, you won't believe, I will call up that person and ask for feedback. पहले मैं वो फीडबैक लेती थी ना, मुझे बहुत रोना आता था कि मैंने ये गलती कर दी, भारती ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया. इट्स ह्यूमन नेचर. बट मैं उस फीडबैक को बहुत कंस्ट्रक्टिव लेती हूँ, क्योंकि अगर उस फीडबैक को मैंने लेकर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मेरे आगे के शोज अच्छे नहीं होंगे. हाउ विल आई ग्रो? Correct. सो आई थिंक आपको यू हैव टू लर्न, इवॉल्व, एंड इट हैज टू बी नॉन स्टॉप. Got it. So Bharti, knowing your anchoring journey, I was quite fascinated. So any message you would want to give to budding MCs or anchors जिनको ये journey start करनी है? Yeah, so there would be 3 points that I want to give to anybody. Number 1, your first show, you have to work very hard to get that first show. तो आप अपने contacts में जितने भी लोगों को जानते हो, किसी दोस्त की शादी हो रही है, किसी के दोस्त के भाई बहन की शादी हो रही है, खुद को पिच करो, get your first show. और वो फर्स्ट शो बहुत अच्छे से डिलीवर करो, क्योंकि उससे ही आपके लीड्स और जनरेट होंगे, रेफरेंसेस आएंगे. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस इज द की. जितना आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जितना आप शो के पहले प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका शो अच्छा जाएगा. एंड नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो रहा हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया क्राउड में से, किसी ने मजाक उड़ा दिया, स्माइल. योर स्माइल ऑन द स्टेज इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन कैरी. And that is, being calm and smiling is a quality of a very good anchor. Third, set your pricing right. Know your worth. If you are a budding anchor, I think minimum you should start with somewhere between 5,000 to 8,000 for a show. And आप हर season या हर 6 months या हर season try to increase your pricing by 10% or 20%. And कोई भी क्लाइंट आपको इतना प्राइस रेस करके देगा नहीं until and unless you prove to yourself and to people who know you around कि आपने उतना एफर्ट डाला है. Every show should make you a better artist. Wow. But ये एंकरिंग का पार्ट है. I know your life a bit. I know you. तो आई थिंक बहुत कुछ है आज एपिसोड में कवर करने के लिए, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नाउ योर ब्रांड विच आई नो पर्सनली, ब्रांड स्मिथ. एंड मैंने थोड़ा टाइम काम भी किया. ऑफ कोर्स आई लव योर प्रोफेशनलिज्म. आई लव हाउ यू नो मेक टीम वर्क लाइक अ ड्रीम वर्क. सो इट्स अमेजिंग. सो मैंने ये भी देखा है कि रिसेंटली you have generated 96 lakhs plus revenue for a D2C brand in just span of 3 months. I mean, how? Please tell me the secret. So first of all, thank you for mentioning about Brandsmith, and it was lovely having you when you worked with us there. And Brandsmith is a branding and a marketing agency which I run with my husband. And हम दोनों उसको मिलके चलाते हैं.
Now coming to your next question कि हमने उतना revenue, see generating 96 plus lakh revenue for a D2C brand is not easy, first of all. Second of all, it comes with a lot of strategy and you have to be very smart in understanding कि आपका performance marketing और organic marketing साथ साथ में चलेगा. मतलब आपका ऑर्गेनिक कंटेंट जो आप सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो आप मेटा और गूगल एड्स रन करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके डिटेल्स करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट कमिंग टू इट दैट वी हैव talented people in our team. And one thing is कि हम जल्दी से अडेप्ट होते हैं. अगर हमने कोई एड रन की है, हमको समझ आ रहा है कुछ टाइम में कि एड परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हम उसमें फटाफट चेंज कर लेंगे. Okay. तो you are constantly on the go. Like you're alert and you are alert. Yes, you are monitoring the ads, you are monitoring what's happening. But for any D2C brand, for a long term perspective, आप सिर्फ मेटा और गूगल एड्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो फॉर रेवेन्यू जनरेशन. यू नीड टू हैव योर ऑफलाइन चैनल्स, योर सोशल मीडिया कंटेंट, योर ब्रांड बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग ऑल इनटू प्लेस फॉर अ होलिस्टिक फ्यूचर ऑफ द ब्रांड. गॉट इट. आल्सो ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ऑल दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, बट आई नो द डिटेल्स की कैसा होता है, क्या होता है. एंड there are videos I have seen of you sharing that you got 3 million organic view for a brand. उसका क्या सीक्रेट सॉस है? आई मीन यू आर वर्किंग एंड हर एक ब्रांड इतनी हैप्पी है. मैं आपके स्टोरीज देखती हूँ, क्लाइंट्स आर सैटिस्फाइड विथ योर एडिट्स, क्लाइंट्स आर हैप्पी टू शेयर द फीडबैक्स. हाउ डू यू मैनेज दैट रिलेशनशिप एंड you reach to that goal? सी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली मैनेज होता है क्लाइंट्स के साथ अगर आप उनको रिजल्ट्स लाके देते हो. अब रिजल्ट्स लाने के लिए एज अ सोशल मीडिया मार्केटर यू हैव टू नो योर प्लेटफॉर्म. इफ इट इज इंस्टाग्राम, मैं दिन रात इंस्टाग्राम को स्टडी करती रहती हूँ, मैं दिन रात उसके ट्रेंड्स को स्टडी करती हूँ. एवरी रील दैट आई वॉच आई विल ट्राई टू सी कि इसमें हुक क्या है, इसमें क्या वर्क किया, क्या नहीं किया. एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ईजी है. आपको सिर्फ एल्गोरिदम का और प्लेटफॉर्म का पल्स समझना आना चाहिए और वो प्रैक्टिस से आता है. Okay. The more videos you make, the better understanding you get. But you are saying hooks जानना चाहिए and all. But this generation AI is taking over everything. And आजकल ऐसा हो गया है कि content creators खुद AI use कर रहे हैं. तो what do you think? AI is replacing content creators or it's like it's helping them? If you make the use of AI in a good way, तो आपको AI help करेगा to become a better content creator. मुझे नहीं लगता है कि content creators कभी replace होंगे. Of course, AI generated creators आते हैं. But if you are best at what you do and you take assistance of ChatGPT for an example, it can help you generate better ideas, give you better data. You can use it as your personal assistant to grow your platform. Really? Yes. So when you onboard a D2C brand, what's your first instinct? So first we check the product. अगर आपका product अच्छा है, genuinely कोई problem solve कर रहा है, तो हम आपको definitely scale करने में help कर सकते हैं. There's a saying that a good marketing campaign cannot fix a bad product. So all the D2C founders first get your product right, and then we are there to help you to find your best product market fit, to help you scale your business and to help you with the organic content. Okay. But आजकल again to AI, you said कि you will help them build organic content. But आजकल हम AI का इतना support ले रहे हैं, तो how AI is helping you brainstorm the ideas or how do you make use of it? So I love ChatGPT. ChatGPT is my best friend and my personal assistant, and I have premium version of it. It is much better than the free version. So you just have to ensure कि आप GPT को proper prompts दो. And there are so many courses available online which will tell you how to make the best use of ChatGPT. And I use ChatGPT day in and day out. And it is a very useful tool to analyze data. So data से आप pattern बना सकते हो और वो pattern को optimize करके you can increase your reach, views, followers, sales, etc. etc. Data is the king. So all the social media managers take a note. I think she is spilling the beans. It's a very useful tip, and
I'll also work on it. Yeah, But यार I feel ना prompts देना बहुत difficult है. मुझे ऐसा लगता है ठीक है ये दे दिया blah 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 हो गया. I have searched for the courses and I couldn't find one, and I feel giving prompts is the hardest task. I'll give you a tip. Mm-hmm. चैट जीपीटी को बोलो कि वो खुद को प्रॉम्प्ट दे. जैसे अगर सपोज आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में कुछ जानना है, कोई कैंपेन सेटअप करनी है, तो आप उसको बोलो हाय यू आर अ परफॉर्मेंस मार्केटर एंड एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर व्हाट इज द प्रॉम्प्ट दैट यू विल गिव टू योरसेल्फ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो वो खुद को ही प्रॉम्प्ट देगा, वो खुद को ही ट्रेन करेगा. देन यू सी द डेटा एंड यू आस्क रिपीटेड क्वेश्चंस. जीपीटी से नहीं समझ आ रहा है, यूज जेमिनाई. उससे नहीं समझ आ रहा है, यूज क्लॉड. There are so many AI tools available. जितना use करोगे, you experiment with it, then you'll get a hang of it, for sure. Oh, ये बहुत अच्छा hack है. I will definitely try it. And a lot of brands coming to GPT, a lot of people are switching from Google to Chat GPT now. अगर मुझे सनस्क्रीन लेना है, तो वो GPT को पूछेंगे कि मेरी ड्राई स्किन है, suggest a sunscreen for me. GPT will suggest you 10 brands. तो now बहुत इनिशियल फेज है, बट सारी ब्रांड्स को अब चैट जीपीटी स्पेसिफिक भी अपना एसईओ करना पड़ेगा, अपना कंटेंट उस हिसाब से करना पड़ेगा, बिकॉज द ट्रेंड्स आर चेंजिंग फ्रॉम गूगल टू एआई नाउ. इसी बात पे मुझे एक रील याद आ गया. एक रील काफी ट्रेंड कर रहा था. यू टोल्ड मी कि सनस्क्रीन के लिए हम पूछ सकते हैं. एक क्रिएटर है, उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा व्हाट कलर सूट्स मी, एंड इट वाज लाइक सो मेनी ऑप्शंस एंड शी ट्राइड व्हाट चैट जीपीटी सेड, एंड उसका रील बहुत वायरल गया. आई वाज लाइक यार सब अगर सोल्यूशन ही वो दे रहा है तो फिर वी वोंट नीड एनी ब्रांड्स और यू नो द कलर एनालिस्ट थिंग्स एंड ऑल. नो ऑफेंस, बट ये सब सोल्यूशन दे रहा है. आई थिंक हमारे जॉब्स भी वो एक दिन. सी एआई, ऑफ कोर्स देयर इज फियर ऑफ एआई टेकिंग ओवर द जॉब्स, बट आप एआई के साथ मिलकर क्या बेहतर बना पा रहे हो, बी इट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, दैट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड. So we spoke a lot about AI, branding, anchoring. You're doing everything. You're balancing, literally balancing everything. Difficult नहीं है यार. Difficult है, but I think being a woman, it's your superpower. If you really tune into your inner self, तो आपको अंदर से एक शक्ति आ जाती है. वो शक्ति को यूज करके just manage your time. मेरे time slots बहुत organized होते हैं कि इस टाइम पे मेरे को ये करना है, ये मीटिंग है, इस टाइम पे मेरे को मेरी कुक से खाना बनवाना है, दैट टू इज प्लान्ड, और क्या बनवाना है. तो प्लानिंग से हम कर सकते हैं. एंड आई थिंक एज विमेन वी आर ब्लेस्ड टू डू मल्टीटास्किंग. एडिशनली अगर आपके पास एक सपोर्टिव फैमिली हो, एक सपोर्टिव पार्टनर हो, तो चीजें ईज आउट हो जाती है. बट लाइफ तो डिफिकल्ट सबके लिए ही है, तो यू चूज योर डिफिकल्टी, दैट्स इट. वो कहते हैं ना हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है तभी जिंदगी चलेगी, वरना तो स्ट्रेट लाइन हुआ तो लाइफ ही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, ट्रू दैट. And one mantra I follow is कि मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. मस्ती करते रहो, बहुत मौज करो, तो उसमें ही चीजें ईज आउट होके हंसते खेलते लाइफ चलती है. टीम मेंबर्स ऑफ भारती, चेकआउट ये क्या बोल रही है. जब भी ये सीरियस हो ना, ये रील दिखा देना या ये वीडियो दिखा देना कि कम ऑन, cheer up, yeah, smile and move on. बट अभी है ना मुझे क्वेश्चन लाइक ऐसे लग रहा है, आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस. देखो मल्टी टैलेंटेड होना या ये सब बैलेंस करना इजी नहीं है, मुझे पता है. बट इफ यू हैव टू चूज बिटवीन एंकरिंग एंड बीइंग बीइंग इनटू ब्रांडस्मिथ, व्हाट वुड यू चूज? अरे आई कांट चूज. How can you choose? Like a mother cannot choose between the two children, no. No, come on. So I'll tell you my reasons. Okay, anchoring is my creative channel, जहाँ मैं बहुत creative होती हूँ. Brandsmith is my sort of engineering channel, क्योंकि मैं बहुत data को analyze करती हूँ. तो जब तक मुझे वो challenge नहीं मिलता है ना, तो तब तक मैं satisfied ही नहीं होती हूँ. तो I want to make sure कि every video is better than the next video. Every video is better than the previous video. So I can't really choose. I mean, that's why the switch between the engineer to marketer, right? It just happened gradually. It was very organic. I started with my own content, then to anchoring, and then to managing people's pages, and now having my own agency. तो बहुत ही organic और gradual रहा है ये. Okay, but एक ऐसा होता है ना कि what if वो नहीं होता तो आप क्या करते हैं अभी? Like ब्रांडस्मिथ नहीं होता है, एंकरिंग नहीं होता तो क्या होता? क्या होता कभी सोचा नहीं है, बट आई थिंक आई वुड हैव ऑलवेज बीन इनटू समथिंग रिलेटेड टू पीपल. लाइक मैंने कभी सोचा भी था कि आई डू MBA in HR because I'm a people's person.
So maybe that, or maybe psychology. Fair enough. Yeah, I've done teaching also, so maybe teaching. I know that. स्कूल में टॉपर थी, फर्स्ट रैंक आती थी, मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि भारती से सीखो और आज मैं इससे बात कर रही हूँ, like I know. Life is a circle. Yeah, It's a full man, circle. I mean, I like this. We are together today, like we are talking and having a conversation. But I want to ask you, message for aspiring goals. Like जो बहुत कुछ सोचती हैं यार लाइफ में, ये करना है, ये भी करना है, एंकरिंग भी करना है, मल्टी टैलेंटेड होना है, बट वो पीछे हो जाते हैं यार, नहीं कर पाते हैं डिसीजन. तो व्हाट मैसेज यू विल गिव देम? देखो, लड़कियों के लिए तो लाइफ डिफिकल्ट है, एक्सेप्ट इट. उस डिफिकल्टी से फाइट करना भी डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू फाइट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ. तो मुझे तो लगता है कि हर दिन एक नया चैलेंज देती है लाइफ. यू हैव टू कीप फाइटिंग. किस दिन होगा आप रोगे, किस दिन होगा हंसोगे, किस दिन होगा यू विल बी वेरी स्ट्रांग, डील विथ इट. बट अपना गोल रखो और उस गोल पे चलो. और जब वहां पहुंच जाओगे ना, तब जो फीलिंग होगी ना, वो इट्स इनकम्पेरेबल. Wow, I have seen her grow like 5 years ago, and now she is amazing. The way she's speaking, I love your aura right now. I love speaking to you. So it's a personal question, if you don't mind. How's your life after marriage? Because I know you have shifted to Goa with your partner. How's everything? It's very nice. It's very beautiful. Thinking about Goa, it's been fun. बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स दिखते हैं हमको. बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं. So I've seen a peacock, I've seen a parrot, I have seen kingfisher मेरे घर के बाहर. बहुत सारे waterfalls हम देखते हैं. It's green, the oxygen is pure. I miss Bombay. I miss the spirit of Bombay, but I think now I love Goa. I love the optimistic view that you said. We see birds. I mean, like this is new, यार. मतलब लोग बोलते हैं ठीक है ना, ग्रीनरी ना. Oh, that was really sweet. But यार, अभी एक और बात मुझे बताओ. आप 24/7 एक ही घर पे, एक ही रूम में पार्टनर के साथ में काम भी करते हो, घर भी मैनेज करते हो. लाइक मिक्सअप नहीं होता, काम भी, कॉल्स, मीटिंग सब साथ में? हाँ, पहले पहले बहुत होता था. पहले डिनर टाइम तक भी हम काम कर रहे होते थे. बट हमने एफर्ट्स लेके ये कर दिया कि 10-10:30 के बाद हम काम की बात नहीं करेंगे. we'll sit dinner, we'll watch a movie. So we have set our own rituals. And हम दोनों अपनी अपनी स्पेस लेते हैं. लाइक दिन में दो घंटे उससे जो करना है वो करेगा, मुझे जो करना है हम वो करेंगे. क्योंकि स्पेस लेना एज एन इंडिविजुअल और अपने आप को नरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर फुल इनसाइड, देन ओनली यू कैन fill it into the relationship, right? Got it. So I think it's very practical and it's very doable. You just have to find your solutions to it, like any other problem or like any other thing in life. आजकल practical होना बहुत difficult है, but I heard you. Any message to your team? My team, I think I love my team. They are pillars, and most importantly, people have been there with us for a very long time. So thank you so much for sticking by. If not for you guys, if not for the people who've edited my content, who've scripted my content, and who've made graphics for me, and who've heard me yelling, shouting, and who've heard me put the pressure of the client on you and put the sales pressure क्योंकि revenue नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, ads perform नहीं कर रहे. तो thank you for sticking by. Thank you for sticking by. And this podcast I owe to you guys. Thank you. Oh, that's a moment. Yeah. Well, on that note, I'm thankful to you for being my guest again and sharing your insights, your life, your business, your personal, anchoring life. This was our conversation. Don't forget to check Bharti's Instagram. I'll link that down in the description. Do check out my Instagram and don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you so much, Bharti. Thank you. Bye. Bye.